जय श्री राम। राम मंदिर निर्माण की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम लक्ष्मण शर्मा फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, मेरठ रोड। See, this video is the initiative for the students who are actually stuck in lockdown. प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक भेजें। ये क्लास 11th, क्लास 12th और कॉमर्स रिलेटेड किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए यूजफुल रहेंगी। सो सेंड द वीडियो टू द राइट पर्सन and it will be beneficial for them actually. So the topic for the day is liabilities and its classification. See, my dear children, liabilities is nothing but when a person or firm or company owes money, when the business is going to pay something to someone, the liability is the amount payable by the business. See बच्चों, liabilities are settled over a period of time through the transfer of economic benefits including money, goods or services. बच्चों, liability is the obligation between two parties which is not yet completed or when the amount is not yet paid. See बच्चों, I am giving you the example. When Amrita sold goods to Aditi, आपने समझा, Amrita is a person who sold goods to Aditi amounting rupees 20,000. यहां सेलर अमृता है, अदिति परचेजर है, तो लाइबिलिटी परचेजर की क्रिएट होती है बच्चों। तो अदिति इज लाइबल टू पे रुपीज 20,000 टू अमृता in dash number of months or dash number of years, depends. Aditi will show Amrita as creditor in her book. So this is something for the example. When A sold goods to B, A is a seller, he has to receive the amount. He will write B in his books as debtor, but B is a purchaser. He or she will write A's name in his or her book as creditor. B's liability to pay to A. बच्चों, now comes in case of sole proprietorship firm or partnership firm, liabilities can be classified as, बेटा दो तरीके हैं, internal liability and external liability. बच्चे, इंटरनल लाइबिलिटी, द नेम क्लियर्स द लाइबिलिटी, इट इंडिकेट्स द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, इट इंडिकेट्स व्हेन द लाइबिलिटी इज टुवर्ड्स द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देयर इज वन ओनर ओनली, बट इन पार्टनरशिप बिजनेस देर आर मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स. तो जो भी ओनर ने या पार्टनर्स ने कैपिटल बिजनेस में लगाई है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल. सो राइटली सेड, कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी. नाउ कम्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी. बच्चों, द लाइबिलिटी विच इज नॉट internal, it means the liability towards outsiders. जो पैसा बाहर के लोगों को देना है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, एनीबडी, जो पैसा बाहर के लोगों को देना है, that is our external liability. It includes loans, short term loan, medium term loan, long term loan. Creditors, when the goods are sold on credit, definitely creditors are actually there. Then bank overdraft, this is another kind of external liability. It is now further we can say, we can classify the liability as current liability. Yes, current liability and non-current liability. In our previous video, अगर आपने हमारी previous video नहीं देखी, the assets and its classification, go there and see
कि मैंने करंट एसेट्स के बारे में क्या बताया था। करंट एसेट्स को पढ़ने के बाद करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को पढ़ने के बाद करंट एसेट्स आर वेरी इजी टू डिफाइन बेटो। So the liability becomes payable within 12 months or one accounting year is called current liability. And the examples of current liabilities are creditors, bills payable, bank overdraft, and short-term loans, and many more. Outstanding expenses, incomes received in advance, etc., etc. So बच्चों, these are current liabilities which are payable within 12 months, which is payable within one accounting year, is called current liability. But now the another term is non-current liability. That means the liability payable after 12 months or beyond one accounting year. Definitely the liability which is not current is called non-current liability. Examples, yes, कोई भी ऐसा लोन बच्चों जो 1 साल से बाद में पेबल है, that is a non-current liability. कंपनी के केस में डिबेंचर इज अ नॉन करंट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 1 year. So the liabilities which exist in the balance sheet for more than one accounting year is called non-current liability. बच्चों, further classification of liabilities as per Companies Act 2013 Schedule 3. क्लास 12th के बच्चे बहुत ध्यान से देखें बेटा. करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, यहां पर भी मैं करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज की ही तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, बट इट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013. वी शुड अंडरस्टैंड द लायबिलिटीज टू बी पेड और सेटल्ड विद इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. करंट एसेट्स में मैंने बताया था लायबिलिटीज की जगह असेट्स था बच्चों. असेट्स विच आर रियलाइज्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी. अब यहां पर सेम लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड, वहां पर पैसा मिलना था, यहां पैसा पे करना है. दूसरी चीज क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग साइकिल. प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में मैंने बताया था. द ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम गैप between the assets when we are acquiring the assets, its processing and its realization into cash and cash equivalent. So ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल है. कंपनी के, फर्म के ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, बट when nothing is mentioned, ऑपरेटिंग साइकिल is for 12 months. So दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों? एज पर कंपनीज एक्ट कि लायबिलिटीज आर हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. सामान खरीदना और बेचना जिसमें आपका मेन ट्रेड है, उसी की वजह से ये लायबिलिटी जनरेट होनी चाहिए बच्चों. इट्स सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम प्रीवियस रिपोर्टिंग डेट. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली 12 month इज नोन एज द करंट लायबिलिटी. आपको 12 months के अंदर वो पैसा पे कर देना है एंड दैट कम्स अंडर करंट लायबिलिटी. सो बच्चों, द अनदर थिंग इज नॉन करंट लायबिलिटीज. लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज. वहां पर मैंने नॉन करंट एसेट्स बताया था. द असेट्स विच आर नॉट करंट असेट्स, यहां पर द लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज. क्या होते हैं बेटा कंपनीज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज? वो होते हैं डिवेंचर्स, मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स. वी यूज टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग. इन सब चीजों के लिए जो लोन लिया जाता है ना बच्चों, वो नॉन करंट लायबिलिटी है. एक और लायबिलिटी होती है बच्चों, कंटिंजेंट लायबिलिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी, it is the liability which may or may not occur. Yes, which may or may not occur depending upon the future specific event. कोई भी आउटकम फ्यूचर से रिलेटेड है बेटा. हो सकता है ये हमारी लायबिलिटी बन जाए, हो सकता है कि ये हमारी लायबिलिटी ना बने. आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं. सपोज एक कोर्ट केस इज गोइंग ऑन विद टेलीफोन डिपार्टमेंट.
अब टेलीफोन डिपार्टमेंट का जो कोर्ट केस चल रहा है हमारे साथ, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, यू हैव टू पे ₹20,000 इमीडिएटली टू द टेलीफोन डिपार्टमेंट. So now after 4 years or 5 years, this has become our liability. It is depending upon the court's verdict. अब कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग इट बिकम्स अवर लाइबिलिटी. सो ड्यू टू पोटेंशियल लॉसूट्स हमारी करंट ये जो लाइबिलिटी है कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन सकती है बच्चों. एंड प्रोडक्ट वारंटीज देती है 2 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी, उसके बाद आपकी वो लाइबिलिटी बन सकती है बच्चों. वर्कमैन क्लेम फॉर डैमेजेस, वर्कमैन काम कर रहा है और उसके हाथ में कुछ चोट लग गई, उसका हाथ कट गया, उसने आपके ऊपर क्लेम डाल दिया बच्चों. अब वो क्लेम कोर्ट के ऑर्डर से आपको सेटल करने को कहा जा रहा है. आफ्टर 6 इयर्स आप केस हार गए तो इट बिकम्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. पहले कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी, जिस दिन आप उसको पे कर रहे हैं दिस बिकम्स योर लाइबिलिटी. अब कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को कहां शो किया जाता है बच्चों, ये पता लगना चाहिए. इट इज शोन एज फुटनोट. यस, इट इज शोन एज फुटनोट बिलो द बैलेंस शीट. बच्चों गारंटी पार्टनरशिप फॉर्म अगर कोई करना जानता है तो उसको मालूम है, क्लास 12th के स्टूडेंट स्पेशली, बिकॉज वो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं. गारंटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. हो सकता है अगर फर्म ने प्रॉफिट नहीं कमाया या प्रॉफिट कम कमा कर दिया उस पार्टनर को जिसको गारंटी दी है, तो वहां पर फर्म की लायबिलिटी बन जाती है, एक इंडिविजुअल पार्टनर की लायबिलिटी बन जाती है. तो यस, दैट बिकम्स द कंटिंजेंट लायबिलिटी. कि ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी के. कुछ आप अपनी रिसर्च अपना स्टाइल से पढ़ना शुरू कीजिए. रीड द बुक्स and go for the research, see the video and do it again and again until and unless you feel that you are completely okay with it. आपने सब चीजें पढ़ लिया है, समझ लिया है, तब आप समझिएगा कि yes you are done with it. Then एक फाइनल रिवीजन के लिए जरूर वीडियोस को देखा करें बच्चों, ठीक है. और जब भी आपके एग्जाम है गो थ्रू द वीडियो, गो टू यूट्यूब एंड फाइंड द वीडियो. एंड कैसे फाइंड करेंगे? माय नेम इज लक्ष्मण. तो मैं लक्ष्मण सर के नाम से जो है मेरी वीडियोस हैं. आप लोगों के पास कोई भी लिंक हो उस लिंक पे जाकर मेरी बहुत सारी सब्सक्राइब कर लीजिए. यू कैन सी नंबर ऑफ वीडियोस एंड मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और आप लोगों के लिए अगर बेनिफिट होगा तो मैं उसके लिए काम जरूर करूंगा बच्चों. सी, ट्राई टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स आई हैव गिवन टू यू. सी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज amount invested by the owner of sole proprietorship firm is called dash liability. इस dash में क्या आएगा? The question for you. You have to answer me. देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा है. Question number 2. Bank overdraft is the example of dash liability. I want to see क्या आपने ध्यान से वीडियो देखा है? आपके आंसर्स और आपके कमेंट्स, आपके हर पॉजिटिव कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है बच्चों. एंड योर कमेंट्स गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू मेक अनदर वीडियो. सो टुडे इज 5th of August and believe me, this is a very auspicious day. See the video completely and share with your student, with your friends and anyone who is in class 11, 12 or studying commerce. It will be fruitful for all. UP board, IB board, CBSE board, all boards. The video is beneficial for everyone. Question number 3 is credit card due amount is dash liability. आप सबके पास क्रेडिट कार्ड हो या ना हो, पापा मम्मी के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप लोगों ने देखा है. और उसके अंदर जब आप लोगों के लिए उन्होंने लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, अपने लिए कुछ खरीदा, तो जो लाइबिलिटी पे करनी है वो किस टाइप की लाइबिलिटी है बच्चों? दैट यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक. द आंसर्स मे बी वेरी, लेकिन मैं उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर्स भी बताऊंगा बच्चों. बट आप अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कीजिए एंड आई टेक द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव मेंशन्ड इट करेक्टली. सो डू इट. द एफर्ट्स आर ऑलवेज रिवॉर्डेड. आज का आपका एफर्ट कल आपके लिए बेनिफिट जरूर शो करेगा. So thanks a lot for watching the video till the end. And अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो प्लीज
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।